Hello dear children, I am Poonam Bagga and I am going to take your subject Maths. There are 15 chapters in your book and today we are going to start the first chapter, Real Numbers. Let us recall that real numbers are a collection of rational numbers and irrational numbers. This you have already learnt in your previous class. Also recall that rational numbers are numbers that can be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q, the denominator, is not equal to 0. For example, ऐसे numbers जो P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं 2/5, माइनस में भी ये numbers हो सकते हैं -3/7, 0/8, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं जो P by Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होते हैं और याद रखिएगा डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज डिविजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड. ऑल्सो दीज रैशनल नंबर्स इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स. N denotes the set of natural numbers starting from 1. Natural numbers are the basic units of counting. For example, if I ask you that how many fingers are these, then you will naturally count them as 1, 2, 3 and 4. So the numbers which are naturally used for counting are called natural numbers and they also are a part of rational numbers. Then we have the set of whole numbers starting from 0. These whole numbers are again rational numbers. And then we have the set of integers z, in which we have the negative numbers, then 0, the positive numbers. All these are also the rational numbers. Here the denominator seems to be invisible. No denominator is here. The numbers are not visible in the form P by Q, but still they are rational numbers. इन सभी numbers के नीचे हम 1 ले सकते हैं denominator में. Because on dividing a number by 1, its value does not change, it remains the same. इसलिए हम सभी numbers के नीचे 1 ले सकते हैं denominator में और इसलिए ये सभी numbers, natural numbers, whole numbers और integers, ये सभी numbers भी rational numbers के ही part हैं. ठीक है, इसीलिए हम जब ये study करते हैं diagram, इसमें आप देखेंगे natural numbers they are included in the set of whole numbers. whole numbers के part हैं natural numbers. फिर ये whole numbers part हैं integers के और integers आगे rational numbers के अंदर included हैं. तो ये set हो गया rational numbers का. और इन rational numbers के अलावा we have one more set of numbers, irrational numbers, and together these two types of numbers form the set of real numbers. Let us have a look at irrational numbers also. These are the numbers which cannot be written in the form P by Q, where P and Q are integers. ऐसे numbers जो P by Q form में नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम irrational numbers कहते हैं. और इनके examples क्या होते हैं? Square root of numbers which are not perfect squares. आप देखेंगे ये सभी numbers 2, 3, 5, 6 ये सभी perfect squares नहीं हैं और इनके स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है. अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लें 4 और उसके स्क्वायर रूट की बात करें तो वो तो हो जाएगा 2 और 2 तो रैशनल नंबर है. इसलिए ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है. Also, non-terminating, non-repeating decimals are irrational numbers, where the digits after the decimal do not repeat and they go on non-stop. We will be discussing about these numbers in more detail in our coming segments. At present, we will be taking up the properties of positive integers. These are the main properties which we will be discussing in this chapter: Euclid's division lemma and fundamental theorem of arithmetic. And this fundamental theorem also we will be taking up in our coming videos. At present, we will be discussing Euclid's division lemma. Now, what is this lemma? What does it mean? A lemma is a proven statement
which has already been proved and it will be used to prove other statements. ऐसा statement जो पहले से ही proved है और उसकी मदद से हम और statements prove करेंगे, उसे lemma कहते हैं. And now what is Euclid's division lemma? To understand Euclid's division lemma, we take one example first. We are having these 7 flowers with us. हमारे पास ये 7 flowers हैं. Now we want to make bunches of 3 flowers out of these 7 flowers. How can we do this? The possible outcome is this. Out of those 7 flowers, we will get 2 bunches of 3 flowers. These are the 3 flowers in one bunch, 3 flowers in one bunch, and still 1 flower will be left. This is the left flower or the remaining flower. Okay. Now this same situation can be represented mathematically. What we are doing is we are dividing 7 flowers into bunches of 3 flowers. 3 flowers के गुच्छों में, bunches में हमने 7 flowers को divide कर दिया है और इसी को हम mathematically कैसे present करेंगे? Divide this 7 by 3. 7 को हम 3 में divide कर रहे हैं. So 7 divided by 3, you will get 3 2s are 6 and 1 is the remainder. Now this number 2 represents these 2 bunches of flowers. ये जो 2 bunch बन रहे हैं, ये 2 उसको represent कर रहा है और this remainder 1, it is representing this remaining flower. ये flower जो बच गया था, ये 1 उसको represent कर रहा है. तो आप देखिए हमने इसी सेम सिचुएशन को मैथमेटिकली भी लिख दिया है. अब इसको आगे और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस दिस रिमाइंडर 1. हमने इसी सिचुएशन को मैथमेटिकली एक और तरीके से प्रेजेंट कर दिया है. 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 इट्स 6 प्लस 1, तो 7 इक्वल टू 7 बैठ गया हमारा इक्वेशन. नाउ हियर जस्ट फोकस एट दीज नंबर्स. This 7 is also called the dividend, and this 3 which is dividing 7, it is called the divisor. This answer of division, it is called the quotient, and this leftover number is called the remainder. ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. Dividend, divisor, this is the quotient, the answer of division, and this number which has been left is called the remainder. Now if we apply these terms here, what will we get? 7 is the dividend, so in place of 7 we can write dividend. Then 3 is the divisor, into 2 is nothing but quotient, and plus 1 is the remainder. In this way we have expressed this situation mathematically, and also we have generalized this situation. This formula you have learnt in your previous classes. Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Now if we convert this equation or represent this equation by variables, then how can we write it? हम इसी इक्वेशन को वेरिएबल से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो डिविडेंड को हम कोई नाम दे देते हैं a, इक्वल टू डिवाइज़र को हम नाम दे रहे हैं b, क्वोशंट की जगह यहाँ से q ले लेते हैं q, प्लस रिमाइंडर की जगह यहाँ पर r ले लेते हैं, यहाँ से r लेते हुए. सो व्हाट वी गेट, a इक्वल टू b इंटू q प्लस r. तो आप ये सब कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? हमने 7 फ्लावर्स को 3 बंचेस में डिवाइड किया, फिर उसी को मैथमेटिकली डिवाइड करके प्रेजेंट किया, और फिर उसको इस इक्वेशन फॉर्म में भी हमने प्रेजेंट करा, और फिर उसको वेरिएबल्स में भी डिनोट कर दिया. At this stage now we can introduce the Euclid's division lemma, which states given positive integers a and b, where a is greater than b, we are taking a to be greater than b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq
plus r. Now just have a look here. This is the same expression that we wrote here. Same है, ये जो expression हमने अभी अभी लिखा है ये बिल्कुल सेम है यूक्लिड डिवीजन लेमा के. तो आप देखेंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ भी नहीं, यही स्टेटमेंट है जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और अब हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानेंगे. सो हाउ डू वी गेट दिस एक्सप्रेशन? व्हेनेवर वी डिवाइड अ नंबर a विच इज़ ग्रेटर दैन b, a को हम अगर b से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट रिजल्ट है और रिमाइंडर हमें इस तरह से मिलते हैं. तो हम हर बार a को इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ BQ, रिमाइंडर को ऐड कर सकते हैं प्लस r. ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है, तो अब हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे? मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं 15 और 2. इन दोनों पर हमें ये लेमा अप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा नंबर सिलेक्ट करेंगे. हमें पता है 15 इज़ ग्रेटर दैन 2. इसके बाद बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवीजन करेंगे. 15 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 2 7s are 14 एंड 1 इज़ द रिमाइंडर. इसी को हम जब ऐसे लिखेंगे 15 इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1, दिस हैज़ बीन अप्लाइड the Euclid division lemma. We have applied that lemma to these two numbers 15 and 2. Take a few more numbers. Let us take the numbers 23 and 5. Obviously 23 is greater than 5. You can take 5 4s are 20. 3 is the remainder. अब इसको आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? 23 इक्वल टू 5 इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर जो है उसको हम प्लस में लिखेंगे +3. तो आप समझ रहे हैं ना कैसे लिखना है इसे? यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे अप्लाई करते हैं कोई भी दो दिए हुए नंबर्स पे. आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिना ये डिवीजन किए. सपोज वी हैव द नंबर्स 35 एंड 3, तो आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं. 3 11s are 33, वो ही इसके क्लोजेस्ट होगा. 3 11s are 33 और कितना रिमाइंडर आएगा? 2. सो वी कैन राइट इट डायरेक्टली ऑल्सो. या तो आप डायरेक्टली लिखिए और अगर आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हैं तो आप रफ में डिवीजन करके फिर आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं. तो याद रखिएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने पर दोनों नंबर्स का डिवीजन करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन भी दी हुई है. दिस कंडीशन r अबाउट दिस रिमाइंडर r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इट शुड बी लेस देन द b डिवाइजर विच इज़ b हियर. जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन जो डिवाइजर b है उससे छोटा होना चाहिए. इसको समझते हैं थोड़ा सा. ये स्पेस बना लें, इसको हटाकर. Suppose we have a few numbers 8, 9, 10, 11 और 12 और अब हम इन्हीं सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करते हैं. वी आर डिवाइडिंग बाय 4 इन सभी नंबर्स को. तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 8 तो 4 की टेबल में आता है, क्लियरली 0 आएगा. 9 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 1. 10 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 2. 11 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 3. और 12 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर फिर से 0 आएगा. तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम 4 से डिवीजन कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या 1 2 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा और ना ही 4 से बड़ा होगा. तो हमेशा याद रखिएगा रिमाइंडर जो है हमेशा 0 हो सकता है या उससे बड़ा तो हो सकता है, लेकिन डिवाइज़र जो यहाँ पर हमारा डिवाइज़र 4 है जैसे इस एग्जाम्पल में, तो उससे कम होगा. तो अगर हम मान लीजिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 2 3 और 4 तक हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता रिमाइंडर और ना ही 5 से बड़ा हो सकता है. तो जिस भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे उससे छोटा होगा रिमाइंडर
या 0 हो सकता है, लेकिन ना तो वो उस नंबर के इक्वल होगा और ना उससे बड़ा। सो आई होप दिस कंडीशन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ में कैसे आता है? What are its applications? The major applications of this lemma are in finding the HCF of given numbers and in finding the properties of numbers. In this video, we will be discussing how to find the HCF of any given numbers using Euclid's division lemma. For this, we will introduce Euclid's division algorithm. Now, what is algorithm? An algorithm is a series of well-defined steps used to solve a problem. Here we know that a lemma is a statement, and when we will apply that lemma again and again, we will get a series of steps, and that series is called algorithm. And where do we use this Euclid's division lemma? It is a technique to compute the highest common factor or HCF of two given integers. Now let us recall that what is the HCF of any two given numbers. Suppose we have the numbers 12 and 16 and now we want to find their HCF. तो HCF होता क्या है? F मतलब फैक्टर, तो हमें फैक्टर ढूंढना है इन दोनों नंबर्स का, कॉमन फैक्टर। और फैक्टर का मतलब है वो नंबर जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे रिमाइंडर 0 के साथ। जैसे मान लीजिए हम नंबर लेते हैं 3 12 को तो डिवाइड कर देगा लेकिन 16 को तो नहीं कर पाएगा, 16 3 की टेबल में नहीं आता है। तो 3 12 का तो फैक्टर है यस, पर ये 16 का फैक्टर नहीं है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 12 और 16 दोनों को डिवाइड कर सके, और हमें पता है दैट नंबर कैन बी 2 ऑल्सो एंड दैट नंबर कैन बी 4 ऑल्सो। 2 ऑल्सो डिवाइड्स 12 and 16, 4 also divides 12 and 16. So 2 and 4 are the common factors of 12 and 16. And also remember that 1 is a factor of every number. तो 1 भी इनका common factor होगा ही होगा। अब इन सभी factors में highest common factor, remember this H, it is the highest common factor. And which is the highest of all these? 4. तो इन दोनों numbers का HCF हो जाएगा 4. So it is just for your recalling because you have learnt it in your previous classes. Next, now we will learn that how this Euclid division algorithm helps us in finding the HCF of any two given numbers. We will understand with the help of this example. We will find the HCF of 455 and 42. Before we write down the steps of how to present the answer in your exam, first we try to solve it in a rough way. पहले हम इसको सॉल्व करते हैं रफ पैटर्न में, और फिर एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे आंसर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम इन दोनों नंबर्स पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, और वो कैसे करते हैं हमने बात की थी, दोनों नंबर्स को डिवाइड करके। तो 455 को 42 से डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली 42 1 ज़ा 42, यू विल गेट 35। अब 35 तो छोटा हो गया 42 से, तो 0 से डिवाइड करेंगे 0 0, यू विल गेट 35 एज द रिमाइंडर। लेकिन हमने बात की थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे रिमाइंडर 0 के साथ। रिमाइंडर शुड बी 0, बट हियर द रिमाइंडर इज 35, इट इज़ नॉट 0. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल कंटिन्यू दिस डिविजन प्रोसेस। हाउ? Now we will take this divisor to this side 42, और अब 42 डिविडेंड बन गया और जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन गया। 35 से 42 को डिवाइड करेंगे और ये लेमा फिर से अप्लाई करेंगे। 35 1 ज़ा 35, यू विल गेट 7। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। हमने क्या किया है, ये एक बार लेमा अप्लाई किया, दोनों नंबर्स को डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हमने ये 42 को आगे ले लिया, 35 से डिवाइड करके सेकेंड टाइम डिवीजन किया है, और अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 35 को आगे ले आएंगे। 7 5 ज़ा 35, और अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है।
Now we can reach the HCF of these two numbers. And which number will be the HCF? This last divisor. ये लास्ट स्टेज पे जो डिवाइज़र है 7, लास्ट में 7 से डिवाइड करने पे 0 आया है. सो दिस 7 विल बी द HCF ऑफ 455 एंड 42. सो वी राइट हियर HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 455 एंड 42. इट इज़ 7. ठीक है, अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. वी विल बी यूजिंग Euclid's division lemma. First of all, just note that 455 is greater than 42. So, using Euclid's division lemma and applying it to 455 and 42, we can write 455 equal to 42 into, just see here, 10. 42 into 10 plus this remainder 35. 42 into 10 plus 35. ठीक है, ये आपका step 1. This is your step 1. Now remainder is not 0. Remainder is equal to 35, which is not 0. So applying the lemma to, now this time we are applying the lemma to the numbers 35 and this 42. So applying the lemma to 35 and 42, we get the second step, step 2, in which we will write 42 equal to 35 into, just have a look, 35 into 1 plus 7. 35 into 1 plus 7. ये डिवाइज़र, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर, तीनों को हमने लेमा अप्लाई करके इस तरह से लिख दिया है. समझ में आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट, अगेन द रिमाइंडर इज नॉट 0. It is 7, therefore applying, let me take it a little bit upwards in this way, applying the lemma to which two numbers? 7 and 35. अब हम इन दोनों पर लेमा अप्लाई करेंगे. Applying the lemma to 35 and 7, we get the third step as 35 equal to 7 into 5 plus 0. Now the remainder is 0 and now we can write remainder equal to 0 and the divisor at this stage, it is 7. So therefore HCF is of 455 and 42, it's 7. Now you can present your answer in this way in your exam. Got it? And every time while you are applying this lemma, you can do the division part in your rough work, or even you can show this also in your copy. Also remember, just see here, we are applying lemma 3 times in this question, and so here we are having a series of steps, and when we write down the steps, many steps, then this series is called algorithm. That's why the name Euclid's division algorithm. Okay, we take one more example to be much more clear. We will find the HCF of 30 and 21. So applying Euclid's division lemma
A equal to BQ plus R. We write the step 1. किसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? क्लियरली 30 इज ग्रेटर देन 21, तो 30 को हम डिवाइड करेंगे 21 से। और ये नंबर्स छोटे हैं तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 21 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स डिवीजन होगा? ओनली 1 टाइम। सो 21 1s are 21 plus you will get 9 as the remainder. If you are unable to write this statement directly, अगर आप डायरेक्टली ये नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हर बार रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। 30 को 21 से, 21 1s are 21 और रिमाइंडर है 9। तो यही हमने स्टेटमेंट यहाँ डायरेक्टली लिखा है। नेक्स्ट वी विल राइट द सेकेंड स्टेप, step 2. In this now this 21 will become the dividend and this remainder 9 will become the divisor. 21 डिविडेंड बन जाएगा और 9 डिवाइजर। यहाँ से देखिए 21 यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ। अब 9 से कैसे डिवाइड करेंगे? 9 2s are 18 प्लस 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, नंबर्स छोटे हैं। और स्टिल यू कैन शो द डिवीजन। 9 2s are 18 and 3 is the remainder. Got it? Then we will take the third step. Why we are moving towards the third step? Because we have not got the remainder as 0. रिमाइंडर 0 नहीं आया है और ये डिवीजन तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सो वी मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। Next we have this 9 will be the dividend and this 3 will be the divisor. ये रिमाइंडर 3 डिवाइजर बन जाएगा और यहाँ हम 9 को डिवाइड करेंगे 3 से। We know 3 3s are 9 and now the remainder is 0. We can write here 3 3s are 9 plus 0. रिमाइंडर 0 आ गया और अब हम इजीली HCF लिख सकते हैं। कैसे? लास्ट स्टेज पे जो डिवाइजर है वो हमारा HCF होता है और यहाँ लास्ट स्टेज पे डिवाइजर है 3। जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था यहाँ पर भी लास्ट स्टेज पे डिवाइजर हमारा 7 था, इसलिए HCF 7 था। अब इस क्वेश्चन में लास्ट स्टेज पे डिवाइजर है 3 और इसलिए HCF भी होगा 3। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लास्ट डिवाइजर इज 3। सो वी कैन इजीली राइट नाउ remainder is 0 and so HCF of 30 and 21 it is 3. Got it? Can you relate these statements with this division? You can easily relate the two. Now let us visualize this HCF. How to find this HCF of these two numbers geometrically also. इसको geometrically भी visualize करते हैं। कैसे? एक rectangle लेते हैं। Suppose we have this rectangle. ये एक रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 21 सेंटीमीटर सपोज। ठीक है, अब हम इस रेक्टेंगल की मदद से HCF कैसे निकालेंगे? हम चाहते हैं कि इस पूरे एरिया को स्क्वायर टाइल्स, सेम साइज़ की स्क्वायर टाइल्स जो सबसे बड़ी पॉसिबल हो उससे कवर अप कर दिया जाए, फिल अप कर दिया जाए। We want to fill up this full area by square tiles, largest square tiles of same size, same side in fact. Okay, how we will find that length which should be used to cover this full area by using square tiles of that side. How can we do this? हमें ये पूरा स्क्वायर टाइल से भरना है, हमें उसकी लेंथ नहीं पता क्या होनी चाहिए। हम इन दोनों नंबर्स में छोटा नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर छोटा है? 21। तो हम 21 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर टाइल इसमें फिट करते हैं। एक ही हो पाएगी क्योंकि लेंथ 30 है, तो पहले हम एक टाइल तो फिट इन करते हैं। तो ये किस तरह से आएगा? ये एक स्क्वायर टाइल हमने लगा दी बीच में
21 सेंटीमीटर साइड की, ये भी 21 है, ये भी 21 है। तो इस तरह से हमने इस एरिया को फिलअप कर दिया एक स्क्वायर टाइल जिसकी साइड है 21 सेंटीमीटर। अब क्या हम इसी 21 सेंटीमीटर साइड की दूसरी टाइल भी लगा सकते हैं? इसके आगे बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अब जो लेंथ बच गई है वो है 9 सेंटीमीटर इस 30 में से, और ये लेंथ भी है 21। तो इतना एरिया हमने एक टाइल से कवर कर दिया है जो है 21 सेंटीमीटर साइड की। अब बचा हुआ एरिया एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 21 और ब्रेड्थ है यहाँ पे 9। अब हम इस पे बात करें उससे पहले जस्ट कनेक्ट इट विद दिस। 30 को हमने कवर किया है 21 सेंटीमीटर की एक टाइल से और 9 सेंटीमीटर बच गया है। देखिए आप, 1 टाइल ऑफ साइड 21 और ये 9 बच गया है रिमाइंडर। इसको कनेक्ट कीजिए इससे। आप कर पा रहे हैं? हमने लेमा अप्लाई किया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमारे पास बचा हुआ रेक्टेंगल है ये जिसकी लेंथ है 21 और ब्रेड्थ है 9। अब हम इस 21 लेंथ को 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब छोटा कौन नंबर हो गया, दोनों में से 9 छोटा हो गया। तो अब हम इस 21 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे। कितनी लग सकती हैं आप देखिए, एक स्क्वायर और ये दूसरा स्क्वायर, 2 टाइल लग पाएंगी 9 सेंटीमीटर साइज की। ठीक है, इसको फिलअप कर लेते हैं। ये हो गई एक टाइल और ये हो गई दूसरी टाइल 9 सेंटीमीटर साइज की। और अब आप कनेक्ट करिए इससे। 21 को हमने डिवाइड किया है, 9 सेंटीमीटर की 2 टाइल्स लग रही हैं इसमें, और कितना बच गया, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हैज़ बीन लेफ्ट, दिस लेंथ। 21 में से ये तो हो गई 9 2 18 और बच गई कितनी लेंथ, 3 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यही लेमा वाला सेकेंड स्टेप अप्लाई हो गया यहाँ पर। 21 इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 3 इज़ द रिमाइंडर। अब हमने इतना एरिया तो कवर कर दिया। कितना एरिया बच गया, ये छोटा सा रेक्टेंगल बच गया जिसकी लेंथ तो है 9 और ब्रेड्थ है ये 3। अब इन दोनों में छोटा कौन है, 3 छोटा है, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे और कितनी टाइम्स हो पाएगा, क्लियरली 9 इक्वल टू 3 इंटू 3। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर साइड की हम यहाँ पर 3 टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स लगा सकते हैं। और वो किस तरह से लगेगी, इस तरह से, 1 और ये 2। अब आप देखिए हमने इस पूरे एरिया को टाइल से भर दिया है और लास्ट में हमारे पास किस साइज की टाइल आई, ये टाइल आई। इसको हम अलग कलर से करें प्रेजेंट, ये वाली टाइल ब्लू वाली, और इनकी साइड कितनी है, 3। आप देखेंगे 3। इसका मतलब क्योंकि लास्ट में 3 सेंटीमीटर साइड की टाइल ये एरिया फिलअप कर रही है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का HCF 3 है और 3 सेंटीमीटर की टाइल से, स्क्वायर टाइल से ये पूरा एरिया कवर किया जा सकता है। तो जब हमें शुरू में नहीं पता था कि कितने साइज़ की टाइल्स पूरे एरिया में लगानी चाहिए, तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार अप्लाई किया। पहले एक स्क्वायर कट किया 21 साइड का, फिर बचे हुए में 9 सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर कट किए, और फिर बचे हुए में हम देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर के 3 स्क्वायर कट करने से पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो इन दोनों नंबर्स का HCF 3 है और 3 सेंटीमीटर साइड की टाइल्स लेकर, स्क्वायर टाइल्स लेके हम पूरा एरिया कवर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये लेंथ है आपकी, इसको, ये लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 21 सेंटीमीटर, और ये जो स्क्वायर टाइल आप देख रहे हैं, इस एक टाइल की लेंथ है, या साइड कहिए, स्क्वायर है तो साइड 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर HCF था, लास्ट में हमें मिला ही था, तो 3 सेंटीमीटर साइड की टाइल से हमने पूरा एरिया कवर कर दिया। तो इस तरह से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ मैथमेटिकली ही स्टेटमेंट्स में ही शो नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ मैंने आपको ज्योमेट्रिकली भी ये बात समझाई। नाउ यू कैन ईजिली टेक योर ओन नंबर्स एंड ट्राई टू फाइंड देयर HCF by using Euclid division lemma in both these ways, geometrically also and yes of course by
mathematical method also, and in this way you will really find it very interesting. Got it? So now that's all in today's class. We learnt about Euclid's division lemma, Euclid division algorithm, and then we discussed how we can find the HCF of any two numbers by using these algorithm and lemma. In our next class we will be taking up some more examples. Till then, goodbye.